I spent some time with this ayah after the class just to validate कि हम लोग सही रूट पे जा रहे हैं. This is actually a mubtada. ठीक है? अब because this is a mubtada and it's idafa and it's all pronoun, all of that is fine. Then we expect a khabar after it. Right? A khabar, a muta'alliq bil khabar, and apparently, if you look at it, you see fihi rahmatu, rahmatu. So आप इस तरह सोच सकते हैं as a student, as a first glance कि भाई fihi तो harf of jar है. ठीक है? When a harf of jar comes in a sentence which is jumla ismiya, we mark it a C, don't we? That's what we do, right? But then there is another word coming in which is ar-rahmatu. Ar-rahmatu is rafa, right? And we normally mark it a khabar. That's what we normally do, right? So आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं. अब आप इसको जब इस तरह देखेंगे तो basically what you will be saying कि it has a door, it's hidden, in it the mercy. That's effectively the meaning. In it the mercy. Okay? So what grammarians are suggesting, और अगर आपको याद हो हमने मेरे ख्याल एक दो क्लासेस पहले कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़े थे. एक हमने पोजेशन स्ट्रक्चर पढ़ा था जो कि इस तरह का था, he has structure. फिर हमने पढ़ा था there is structure. there is structure में हमने पढ़ा था कि harf of jar lam followed by a mubtada gives you a there is structure. Sorry, अगर harf of jar lam के अलावा harf of jar ho and then it is followed by mubtada, that is a there is structure, if you remember that. So this is forming that format basically. Right, so fihi is a harf of jar and then there is a mubtada. Right, so grammarians say that this is a there is structure. So you actually should be saying there is mercy in it. There is mercy in it when you say fihi ar-rahmatu. So if you look at it from that angle, you cannot assign fihi a C and you cannot assign ar-rahmatu a B. It's no longer a standard harf of muta'alliq bil khabar for batinu and no longer standard khabar, because this in itself becomes a full jumla ismiya. Let me show you. So it's A and this is the. So this in itself is a AC structure. Okay? And now there is an independent mubtada here. Okay? So what grammarians suggest is this entire thing is basically a B fi mahalli rafa. Fi mahalli rafa khabar. And it's a khabar. Okay? That's what grammarians are suggesting. Okay? कि इसको आपको इस तरह देखना है कि ये जुमला इसमिया स्टार्ट हुआ बट इसकी ये पूरी खबर है. Another जुमला इसमिया, the nested one. ठीक है? सॉरी जी एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, जी सॉरी जी बिफोर. जी अब जी आपने सॉरी शुरू में कहा था कि ये जो बातिनू है ये जी जी इट्स फॉर बाब, दरवाजे के लिए जी या जी डोर जी के लिए. जी बट इसमें तो ये सेंस नहीं लग रही कि इट्स नॉट अबाउट कि डोर इज हिडन. डोर के अंदर क्या हिडन है वो बात है जी या जी नहीं? बिल्कुल सही कह रही हैं. ऐसा ही है. ठीक है. और आया का कॉन्टेक्स्ट भी यही है. ठीक ठीक ठीक. वो मैं आपको बताता हूँ कि इट्स नॉट दैट, क्योंकि जब हमने उसको खबर बनाया था तो वी वर सेइंग द डोर इज हिडन, राइट? बट नाउ द entire scene changes. Door is not hidden. What's inside the door, that's hidden, दैट्स हिडन. राइट. right? And that changes the entire scene. तीन. सही. So जो scholars हैं और जो grammarians हैं, मैंने multiple को check किया है, majority का यही opinion है कि basically what munafiqeen will see, they will see a door डोर. सही. and they will feel tempted towards going to that door because there is a wall in front of them, and now they are in panic. The noor is gone. Noor was all on the mu'mineen side, and now they're in pitch dark and they are doing this desperate seeking of noor.
And ठीक in that instance, they are shown a door. So naturally, you would want to go and try to open up that door. हुँ, But that door is for them as a deception, just like they used to deceive in this world, right? And on the other side of that door, जिसके लिए word बातें use हुआ है, hidden in it, hidden from which perspective? From the hypocrite's perspective, ठीक because they can't see it. Hidden in it is mercy. And who is नहीं, this वहाँ mercy पे for? यार For ये तो नहीं believers. लिखा हुआ कि डोर जी, उनके लिए नहीं है। ये किनके तो लिए? कहीं नहीं लिखा हुआ। लाइक किनके लिए? जो डोर है, जो जी जी मुनाफिकीन है, जी जी। वो यहाँ ये तो लिखा नहीं हुआ कि डोर उनके लिए नहीं है। नहीं, ये तो मैं कह भी नहीं रहा ना। मैं कह रहा हूँ कि मुनाफिक, जब आपके सामने एक वॉल गिरती है, जस्ट लेट्स थिंक ऑफ इट रैशनली, जब एक वॉल गिरी है और उसमें एक डोर है, जी, right? So all we are saying is there is a door in it, या and पार्टीशन in the inside of that door, on the hidden side of that door is mercy, या right? So अब आप इसको एनालाइज कीजिए कि मर्सी जो है, ar-rahmatu, principally speaking, according to Allah, should be on the mu'mineen side or on the munafiqeen side, Momini. right? So so there is door is just a partition. Mu'mineen will see it, munafiqeen will see it. It's just a door. डो But what's hidden inside the door is not accessible to those who are on the munafiqeen side. हुँ, हाँ, That's what ये this ayah बात is मैं referring कह to. रही हूँ कि ये जो जी, इज नॉट एक्सेसिबल, ये तो यहाँ नहीं यूज हुआ। यहाँ तो सिर्फ बताया accessibility गया, मीनिंग के वो उसको एक्सेस नहीं कर इनफ सकेंगे। लेकिन ये तो नहीं कहा गया फात भाई। ये तो सिर्फ बताया क्या गया जी? कि डोर है हम्म। और उसमें मर्सी है। क्या पता, लाइक अल्लाह इज मर्सीफुल, हाँ, क्या वो पता। तो वो तो अल्लाह ताला का डिसीजन है। हाँ, वो वो तो तो अल्लाह ताला का डिसीजन है। ऑफ कोर्स दैट्स समथिंग आई कैन नॉट से। हुँ, अल्लाह, अब देखें, अल्लाह ताला ने किसी को जन्नत में भेजना है ना, उसको अल्लाह ताला को इस डोर को ओपन करने की जरूरत नहीं है। करने दो हाँ, ठीक है, ये डोर सिर्फ हम हमें समझाने के लिए और हमें जरा सीधा रखने के लिए बताया गया है विजुअलाइज़ इधर। ठीक है, अब जब ये मैं आपको बता रहा हूँ, when this scene happens, I mean, Allah is Al-Qadir, right? When this scene happens, my mind, naive mind says, he automatically, everyone Allah has decided to give mercy will be on the other side. हुँ, या Automatically on the other side. And उसके बाद भी, if Allah decides कि भाई किसको मैंने mercy देनी की, Allah is not dependent on this door. This is for you and me, right? It's for us to understand. ठीक है? हुँ, तो फ्रॉम ग्रामेटिकल स्टैंड पॉइंट इसकी जो ट्रांसलेशन है, इट्स समथिंग लाइक दिस कि देन इट विल बी पुट, a wall will be put between them, हुँ, okay? It has a door, it's hidden, comma, in it it's mercy, there is mercy, okay? This is the type of translation you're looking at. ठीक है नहीं तो फात भाई, अब तो जी, बातिन और रहमा के लिए हो गया, तो डोर तो हुँ, विजिबल नहीं हो गया। तो डोर तो देयर इज अ विजिबल, डोर, जी जी, सो डोर तो हिडन विजिबल, इज द रहमा, लाइक ये जी अगला से। जी जी, व्हाट्स ऑन द अदर साइड ऑफ द डोर, दैट्स हिडन। क्योंकि पहले जब हम बी मार्क कर रहे थे, देन वी वर मेकिंग द डोर डोर, हिडन, डोर which is not हिडन। correct, right? So the mercy is hidden, which is inside the, but door would see. It's like यानी आप किसी भी जगह पे जाए, कोई इवेंट में जाए, कोई थीम पार्क में जाए, there is a door that's closed and you see people inside enjoying. You can't enter because you're late, right? So you just cannot enter because you're late. Okay, नहीं जी, time खत्म हो गया. We're not taking anyone. So that feeling that you have, oh, we're really missing out. Oh, I wish I would have spent less time wearing my socks. Okay, we wouldn't have taken that break on the highway. हम टाइम पे पहुंच जाते हैं, ये वाली फीलिंग है सारी। ठीक है, so that's what it is. So this wall is now in place, and there is a door which is visible to the munafiqeen and the mu'minin. But the rahma inside that door is for the believers on the other side. That's what this ayah is saying. अब बात करते हैं वज़ाहिरु. This is the same pattern as this one.
Zahir is apparent. Mhm. Okay, so there is an Mhm. and then there Idafa. is Zahir. So this Zahir is again a mubtada, just like Batin. Okay? And what's apparent in it, ठीक है, इसको फिर कहते हैं it and it's apparent, लिख देते हैं, and then this comes here. Min qiblahi, min qibalihi. ठीक आपने वर्ड किबला सुना हुआ है, जी। राइट? क्या मतलब होता है किबला का? पता है, कुछ हुँ। अंदाजा है? व्हाट डज इट मीन किबला? डायरेक्शन। टुवर्ड्स डायरेक्शन, डायरेक्शन टुवर्ड्स डायरेक्शन, वेरी गुड, डायरेक्शन. सो अब मेन आपको पता है दिस इज हर्फ ऑफ जर, ठीक है? आपको ये भी पता है क़िबली इज अ इस्म दैट इज मेड जर बिकॉज ऑफ मिन, एंड हुँ, क़िबली ही इज एन ही इदाफा. इज़ाफ़ा ये सब चीजें आपने डिटेक्ट कर ली होगी, ठीक है? सो इट्स एन इदाफा, एंड बिकॉज हमने अभी पीछे मुब्तदा मार्क किया, दिस विल एंटायर बी अ सी, जी। राइट? दिस वुड बी अ सी, जस्ट लाइक वहां फी ही था, यहाँ पे मिन है, राइट? Qibali, it's Qibla is a direction. Qibali is a fixed word. इसको अरबिक सर्फ में कहते हैं. सर्फ़ um, कमान uh, इज़ इट? it's a word that cannot change basically. It's a word that cannot change. इसको इसका कोई वो नहीं होता, यानी मेजॉरिटी वर्ड्स अरबिक में ऐसे होते हैं जो इवॉल्व होके आते हैं. ये वर्ड ऐसा होता है जैसे फिक्स होता है. इट कैन नॉट चेंज, इट इज द वे इट इज, दैट्स इट. तो इसका मतलब होता है basically towards, tending towards, in front of it. Okay, that's how it is translated normally. So min qablihi means ke towards it, basically, is something that is coming forward, which is idaf, which is again a mubtada. This is again an ism based sentence inside another ism based sentence. We saw zahiruhu, that was the mubtada, and then this entire sentence is a khabar of that particular sentence, that mubtada. Does that help? So हुँ, अब आप जब किबला कहते हैं तो बेसिकली आप फेस करते हैं सर्टेन डायरेक्शन में, तो आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं फेसिंग टूवर्ड्स में. ठीक है, अब मैं इसको अगर यहाँ ट्रांसलेट करूँ फ्रॉम, अभी मैं लिटरल ट्रांसलेट कर रहा हूँ, फेसिंग टूवर्ड्स इट, इट कमिंग फ्रॉम द ही, द पनिशमेंट. Now, this is all being discussed from the perspective of the hypocrites. मोमिनीन की बात हमने पिछली आयत में कर ली थी. This is from the perspective of hypocrites. कि hypocrites जिस सीन में हैं अभी वॉल की इस साइड पे, तो क्या क्या हो रहा है? उनको एक डोर नजर आ रहा है जिसकी अदर साइड पे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि मर्सी होगी. लेकिन what is apparent to them as hypocrites, face what is facing towards that door is the azab, is the punishment from the side, on the side of the hypocrites. अब ये जो मिन यहाँ पे लगा हुआ है, आपको अंदाजा हो रहा होगा फ्रॉम की ट्रांसलेशन यहाँ बनती नहीं है एज सच, डजंट मेक सेंस, राइट? जी, और हमने पास्ट में भी पढ़ा है अरबिक के अंदर मिन को कई दफा एज एन एक्स्ट्रा मिन भी यूज किया जाता है, जायदा जिसको कहते हैं. दैट इज टू क्रिएट एन एडिशनल मीनिंग. You didn't really needed min here. You could have said wazahiruhu qibluhu al-azabu. You could have said that. ठीक है? तो that would have been fine. But min लगाने की रीजन ये है कि उसको एक proximity दी जाती है कि for example right close to it, facing towards it. That emphasis is created by this extra min. So this is basically extra. इसको आप इस तरह कर लें, फॉर एग्जाम्पल Zahiru, right there, facing towards it. You, अगर आप इसको लिख लें, that would make more sense to you.
you're right there, close to it, there is punishment. So that's the scene of the side of the hypocrites. So जो मुफस्सिरून है वो कहते हैं कि ये डोर उनको दिखाया जाएगा एज अ डिसेप्शन. They won't be able to open it, they won't be able to do anything with it, but they would just feel the urge to open it and go back, just like they used to deceive not just the believers but also themselves, because they first believed and then they started to do things which are not right. और जो अगली आया है, that is the heavy one. ये तो सिर्फ एक सीन एक क्रिएट किया गया है. अगली आया के अंदर अल्लाह ताला ने हमें पूरा प्रोसेस बताया है, how somebody becomes a hypocrite, how they become a hypocrite. और जब आप उसको पढ़ते हैं आप कहते हैं अरे उप्स यार ये तो मसला क्रिएट हो गया. वीकेंड ठीक है. पार हो गया बात है. ये तो प्रॉब्लम है. ठीक है. that is why the next ayah is it's I mean from wisdom standpoint and the message standpoint is very heavy. From grammatical standpoint it's simple, not too difficult. बात है, एक क्वेश्चन कर लूं जस्ट जी बिफोर वी बिल्कुल स्टार्ट द कीजिए, नेक्स्ट बिल्कुल आया. कीजिए. ये जो हमने अभी ज़ाहिरुहु मिन जी किबलिही जी किबलिहिल अज़ाबु लेबल किया, हमने ज़ाहिरुहु को ए किया है, हमने जी मिन किबलिही को सी किया है, तो हम अज़ाबु को उसकी खबर क्यों नहीं बना सकते अल अज़ाबु को? वो भी तो सेंट. जी उसकी ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे आप सही तरह से. अगर आप उसकी खबर बनाएंगे तो वैसे बना भी सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ग्रामेरियन ने ये किया हुआ है. अब जैसे आप कहेंगे इट इज अपेरेंट, नॉर्मली यहाँ पे जैसे पिछली दफा किया था कॉमा, जी उसकी मेन रीजन क्यों नहीं बना रहे हो लोग उसको खबर, क्योंकि ये एक सर्टेन फॉर्मेट को फॉलो करता है, स्ट्रक्चर जो देयर इज फॉर्मेट है. ठीक हमने पढ़ा था ना. So the grammarians say कि when you have a harf of jar followed by a delayed mubtada, in most likely cases this is a there is format. It's a possession structure, some sort of existent structure. When something is existent, I say fihi kitabun, there is a book in it. So जब आप किसी चीज की एग्जिस्टेंस को बताते हैं तो दिस स्ट्रक्चर अप्लाइज, देयर इज स्ट्रक्चर. तो वो क्योंकि ये कहते हैं कि ये पूरा एक देयर इज स्ट्रक्चर है और देयर इज स्ट्रक्चर is a sentence in itself. So you can't take part of that sentence and mark a khabar for another sentence. You rather take the full one. So it is going to be the same like this. ये जो हमने किया था ना काम यहाँ पे, it is also going to be like this. This entire thing is going to be its khabar. ठीक है. रेडी है अगली आयत के लिए? मोराल कैसा है? वो बिलाल भाई को पता होगा ना, फौज में कहते हैं ना मोराल कैसा है, हाय सर, अप टू स्काई सर. चले देखते हैं इंशाल्लाह. नहीं बात है, हमें पता नहीं चलेगा तो करेक्शन कैसे होगी, तो इसलिए सबकी करेक्शन होने वाली है इंशाल्लाह. अब सब करेक्ट होने वाले हैं. अच्छा चले. समोसा खिलाने से करेक्शन होगी. सर मैं समोसा खाने के लिए तो हमेशा तैयार होता हूँ. समोसे का तो प्रॉब्लम है ही नहीं, कीमे वाला आलू वाला कोई भी चलेगा. फिर आफत भाई ये जो सामने दो लोग हैं इनसे कांटेक्ट कर. तो आपने समोसा शॉप खोली है बिलाल भाई? है समोसा डीलर हैं अपनी सारी लाइट पूरी कर रहे हैं लोगों को समोसा खिला के. अब बात है. नहीं आई होप इंशाल्लाह. युनादूनहुम. nada yunadu means to call. ठीक है. अब इसको जरा डिकोड करें ना. युनादूनहुम क्या स्ट्रक्चर है, क्या चल रहा है इधर? युनादू तो फेल है. बिल्कुल फेल है. प्रेजेंट भी है. और ये फाइल क्या है? पैसिव कैसे है? नहीं, मैं तो यू की वजह से ना है ना और हम दो प्रोवर्ब है. युनादू ना इसके अंदर
ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, No, आप no, पैसिव नहीं sir. बता पाएंगे इसका, क्योंकि यहाँ पे अलिफ लिखा हुआ है। ठीक है, अलिफ लिखा हुआ है, मीनिंग कि इसका एक रूट वर्ड मिसिंग है, अब हिडन है। ठीक है, सो वो या तो वाव होता है या होता है। ठीक है, सो यू वोंट बी एबल टू टेल इफ इट इज अ पैसिव, क्योंकि आपने वो जो सेकंड लास्ट लेटर जिस पे फथा डिटेक्ट करना था वो विजिबल ही नहीं है आपके लिए। ठीक है, सो दिस इज नॉट पैसिव, this is अच्छा normal active fail, and there are three classes of fails that naturally starts with oo sound, even in ओके active, सही सही even in active. So this is normal active phase, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ठीक इसका फाइल क्या है, मीनिंग इसके अंदर प्रोनाउन कौन सा है? No. होम हुम, इसके अंदर हुम है। ठीक है, युनादूना लाइक यंसुरूना। ठीक है, ठीक है जुनेद, क्लियर? जी जो आगे हुम लगा हुआ है वो वो क्या उसके चीज है? फाइल नहीं, फाइल तो Three. ओ सॉरी अभी मफूल बताया, बिही Three. मफऊल है। मफूल बिही जी जी, सॉरी तो यू आर लुकिंग एट 1 2 and 3 3 1 2 बेसिकली, जुमला फेल है। ठीक है, सो दिस effectively means they will call them। ठीक है, क्योंकि ये इंसिडेंट जो हो रहा है अभी, सारी चीज ये फ्यूचर में है ना, जी और प्रेजेंट टेंस फॉर्म ही यूज होती है प्रेजेंट और फ्यूचर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यू विल से दे विल कॉल देम, उस सीन में बात हो रही है अभी। Okay. अब आगे आती है कहानी जो आपने पहले की हुई है, लेट्स सी इफ यू कैन फाइंड दैट आउट। अलम, क्या चीज हो सकती है अलम? थिंक अबाउट इट। अन Question. एंड लम जी, Question. Is अन question and क्वेश्चन, एंड लम lum इज is the डिड harf नॉट lum. Did not. डिड हर्फ Light, नॉट लम। Harf What? lam. Tell me about this harf. What was it? light, लम इज lum, हर lum. लाइटेस्ट Like Lightest. lightest. Good. So it's a question being formed, and it's the lightest harf. And somebody said did not, meaning this is also a negation, right? Negation. This was negation in the present tense। present tense को जब past tense में push करना होता था, past में push करना होता था, did not वाली negation के साथ we used to do that। ठीक है, चले यहाँ तक क्लियर है। न को उनको डिकोड करते हैं। ये तो काना ये वो काना और एक वाद थी काना Pele nakis. Youth kun. This is a fail, Na. या Kun. इट्स अ फेल agreed। This is नाकिस, ना इस काना फेल है आई थिंक नाकिस। ठीक है, वीक फेल है। ठीक है, what is the pronoun inside this fail? इज वी नो We। So there is nahnu inside this। ठीक है। Is it normal, light or lightest? Lightest. Lightest. लाइटेस्ट This is lightest because of the oops, because of lum, right? Lightest because of lum. So we used to use lum as did not। What was the meaning of kana yakunu? Kana का मतलब क्या होता था? यूज्ड टू नहीं, वो एक पर्टिकुलर अच्छा टेम्पलेट में होता था। Was. It was. It was. He was। ही He वो was. It's a ओके verb यस to be basically। हाँ. So he was, और ये तो था काना, और यकूनु जो प्रेजेंट टेंस है, He is. he ही is। he is, right? अब he is तो ये भी हो सकता है ना, देखिए हुआ को मैंने लिखा, right? Hmm. तो he is इसको भी पढ़ा जा सकता है, he is यकूनु को भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन यकूनु को he is being भी पढ़ा जाता है कई दफा। Hmm. ठीक है, so both are possible। सो ओके, यहां तक तो हमने स्टैब्लिश कर लिया। अब हमें पता चल गया न, ये लाइटेस्ट भी है। अब लम के साथ इसकी मैंने ट्रांसलेशन बिल्ड करनी है। डोंट वरी अबाउट द क्वेश्चन पार्ट, वो हम आखिर में करेंगे। लम Did नकुन, not. Did Yeah. not. नॉट यूज्ड टू We. दे सॉरी वी अगर लम डिड नॉट है
और ये नहनु Yeah. वी आर है, राइट राइट, वी आर। We were. We were. इफ नॉट वी आर तो We क्या were होगा? not. We were not. सो वी We were. वर, और यहाँ पे आप डिड को ग्रे आउट कर दें, बिकॉज डिड विल नॉट मेक सेंस हियर, राइट? वर वी नॉट, Sorry. If not a we were था ना, वर वी नॉट, did की sense मिलती। डिड इसके साथ क्यों जुड़े जा रहे हैं यार? चलो इसको हटा देता हूँ। बेसिकली दैट्स व्हाट इट मींस। तो लम की मीनिंग को आप लिटरल डिड के साथ नहीं यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते, इंग्लिश में सेंस नहीं बनेगी उसकी, राइट? सो यू आर सेइंग वर वी नॉट क्वेश्चन मार्क। So now the hypocrites are calling. They will call them, were we not? And the आगे आता है ma'akum. क्या चीज है ma'akum? स्पेशल No, मुदाफ। इजाफा। Special Idafa. mudaf. Special mudaf. Good. So With this is With idafa, you. special with mudaf. you. जी। अब आप देखें नेचुरल रिएक्शन है ना, आप किसी को चेस कर रहे हैं और आप उसे कह रहे हैं आई वांट टू शेयर योर लाइट, right? All of a sudden there is a wall that comes behind between you and both. You will immediately shout, wait, were we not with you? Were we not with you? That's the scene. ठीक है? The hypocrites are now calling the believers, were we not with you? ठीक है? Question mark. Okay. They will call them, were we not with you? अब इसके बाद believers आंसर करने लगे हैं hypocrites को, and answer they never gave them in this world, but the answer they will give them on this occasion. ठीक है? And that is where the heavy lifting is. कालू, बाद भाई कालू ने आपको, मार्क नहीं किया उसको। हाँ मार्क भी करना है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मार्क करे ना, मैंने तो नहीं करना, आप नहीं करना है। लाकुन You do 1 it. 2 हो गया ना, 1 2 नहीं, गलती कर दी नहीं। यहाँ पे। नहीं तो फेल। नहीं तो ए जुमला इसमें की तरह होता है ना फिल्म। ओह यार This Yeah, is it's A. mubtada. It's A. This is A. What about ma'akum? It is C. मुताल्लिक बिल खबर। स्पेशल मुदाफ के साथ तो यही नहीं था फात, सी था। स्पेशल मुदाफ के सी होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो काना यकूनों का केस है ना, उसमें आपको पता है खबर नस्ब हो जाती है। Remember? जी, मफूल बिही। जी। तो I would advise to just mark it खबर, ओके। क्योंकि दिस इज स्पेशल केस। दिस काना यकूनों का केस है जिसमें खबर टर्न्स इनटू नस्ब। सो दिस मा इज नेचुरली नस्ब, तो जस्ट कॉल इट खबर। ट्रांसलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको सी मार्क करें, बी मार्क करें, इट्स द सेम थिंग, जस्ट अ ग्रामेटिकल वे ऑफ लुकिंग एट इट। हमारा ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली जो है ना, ग्रामर को पिन डाउन करना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली राइट विजडम को एक्सट्रैक्ट करना है, राइट? सो समटाइम्स ग्रामर कैन बी गिविंग यू मल्टीपल आंसर्स, एक आंसर होगा फिर दूसरा होगा, दे विल बोथ लीड टू सेम ट्रांसलेशंस। That can happen. This is one of those cases. You can mark it at C. If you want to be strict कि नहीं जी special मुदाफ तो C होता था, तो I'll mark C. Fine. Yeah. That's also fine. But if you mark it B, that's also fine. So let's keep it AC क्योंकि हम उससे ज्यादा familiar हैं। अब मुझे एक बताइए, इसमें इसम काना क्या है? What is इसम काना? इसम खाना is we. We, but that's what I wanted to hear. This nahnu is ism kana. The inside pronoun जिसको हम do और fail वर्ड में कहते हैं, वो जुमला इस्मिया वर्ड में इसम काना कहलाता है, ठीक है? And this would be खबर काना, और मुताल्लिक बिल खबर काना if you want to. That's fine. Okay. Right. qalu, I think you know that this is fail. 1 2
Yeah. right? Yes, yeah. Fast, Fast. it has hum inside it, so it is Mhm. giving you 1 and 2. Mhm. When the kalu comes, what happens? Screen. वो The Brackets. quotes जो start. Would start. The quote starts. So now the quotes quote are going to start. And everything inside that quote is a maf'ul of the kalu. That's the principle. Okay? चाहे वो 6 आयत तक जा रही हो, 6 पेज तक जा रही हो या एक वर्ड हो, everything inside the quote is the maf'ul of the foil fail column. Okay, so that will be 3. Bala is just a harf that says that means yeah, of course, sure, of course. So what we're saying, they will say. Now this pronoun they is going back to the mu'minun. Right? They will say. Now they're responding. Okay? Yes, of course, just a harf. So this, of course, कई translations में आपको नजर आएगा ये yes क्यों लिखा हुआ, ठीक है? Of course, you were with us, for sure, no doubt. Okay? अब आगे reasoning आ रही है. This is what something that we need to understand. वलाकिन्नकुम, पता है आपको ये structure? yeah. Why is harf of ataf? Lakinna is harf of nas. Ataf, harf of nasab, and there is a And pronoun, right? pronoun. वलाकिन्ना. So असूलन आप इसको a mark करते हैं क्योंकि ये हर्फ ऑफ नसब फ्रैगमेंट है, इट कैन बी मुब्तदा, राइट? सो हर्फ ऑफ नसब फ्रैगमेंट. लाकिन्ना का क्या मतलब होता था? In Hindi. Because to need to buy. Indeed. मैंने आपको एक Certainly. ट्रिक बताया था. वो अगर आप उस Fine. अगर आपको वो ट्रिक याद है तो आपको आंसर आ जाएगा. नहीं याद, लेकिन अगर नहीं याद Okay. तो फिर प्रॉब्लम है. सेम यही मतलब है इसका. ऊटी दे दी मैंने आपको. लेकिन ही है इसमें. लेकिन लेकिन लाकिन्ना इक्वल्स लेकिन Yeah. ऑफ उर्दू, ठीक है? लेकिन however, How? however. right? However, lakinna, lekin, similar. Mm. Okay? So, however, you all, let's be explicit, ठीक है? अब वाव को ट्रांसलेट करना है हमने. अब आप देखेंगे ना, जो वाव भी होते हैं ना अरबिक में, दे आर ऑफ मल्टीपल टाइप्स. हमने 2 पढ़े हुए हैं. हमने पढ़े हैं एक हर्फ ऑफ जर और एक अतफ. कुछ वाव होते हैं वो वाव हालियास कहलाते हैं और दूसरे होते हैं, ठीक है? ये वाला वाव आप देखेंगे ना, इसमें एंड वाली मीनिंग फिट नहीं होगी आपकी ट्रांसलेशन में. दे विल से ऑफ कोर्स एंड यू ऑल, हाउएवर यू ऑल. सो बेसिकली इस वाव को यहाँ पे एज अ या तो ट्रांसलेट नहीं किया जाता या हाउएवर के अंदर ही कंसीडर कर लिया जाता है, या इसको वाइल के तौर पे ट्रांसलेट किया जा सकता है. माय एडवाइस वुड बी जस्ट लीव इट. You have got the meaning, so it's fine. So they will say, yes, of course. However, you all fatantum. Now, this is a deep word. This is the same word, जिससे word fitna होता है. It's the same root. Fitna is trial. Fitna is trial. Fatantum is a fi'l, as you said correctly. It's a past and it has antum in it. Right? It's antum inside it. So, and it is of course giving you 1 and 2. Now, fatantum basically means to lead to temptation. To lead to temptation, meaning knowingly putting yourself in a situation that will lead you to do things which you're not supposed to do. Taking actions that lead you to something that is not right.
ultimately. That goes against the commandment of Allah and the Prophet. इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, आप देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे क्या आपको मैं एग्जांपल दूं, किसी रिलेटिव ने आपको शादी पे बुलाया, राइट? उनकी जो शादी है बड़ी मॉडर्न स्टाइल में होती है, बारात भी होती है, ढोल धमाका भी होता है, बैंड बाजा भी होता है, हर चीज होती है, डांस भी होता है, राइट? But because there is a relative pressure, you decided to go, right? Say, okay, fine, I'll go. And when you ended up there, I'm just creating a speculated example. When you ended up there, it was an event जिसमें म्यूजिक स्टार्ट हो गया, लोग डांस करने लग गए, सब हो गया, और किसी ने आपको हाथ से पकड़ के उठाया, कहा चलो जी तुम भी हमारे साथ डांस करो। होता है ना हमारे मुल्क में ऐसा। Why did that incident happen? Because you let yourself in that temptation. If you had taken a stand, no, I can't come in this wedding, I'm sorry, I love you but I can't come because of this and this reason. You could have educated that person, you could have informed him. हमारे मुल्क में लोग नाराज हो जाते हैं, you could have bared that नाराजगी for the sake of Allah. लोग आपको बुरा भी कहेंगे, सब चीजें होती हैं हमारे मुल्क में, लेकिन if you had protected yourself to not create that temptation for yourself. So मुनाफिकीन के बारे में यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि मुनाफिकीन intentionally, this is step number 1, they are intentionally putting themselves in situations that lead to wrong. ऑफिस की बात कर लें, कलीग्स हैं, डिनर पे जा रहे हैं, and they ended up going in a restaurant where there's lots of beer and alcohol going on. You are somebody who eats halal, and then you say, oh, do you have vegetarian? Okay, ले आओ जी mashed potatoes ही ले आओ मेरे लिए, ठीक है, I'll eat that. Nothing seems to be wrong there apparently, but basically you have put yourself in an environment where you were not supposed to be, where everyone is consuming alcohol around you. The environment around you is not pure. It's not really the environment that Allah has recommended us to be in. If you do it too often, if you do it every other day, जब भी वो party में जा रहे, just to try to fit in, you want to be like that because you want to build relationships, because you want to do all of those things. If you do it too often, ultimately you would get to make that environment a very normalized environment for you. मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी मिसाल देता हूँ। आप यकीन करिए 5 years before, मेरे 5 to 6 years before, I couldn't even think of talking about LGBT to my son. It was not a norm, right? I couldn't think about talking about this topic with my parents. It wasn't there. It was a taboo. Nobody discussed that. Even spouses didn't discuss this topic. It was not even a topic a few years ago. Maybe 5-6 में कम बता रहा हूँ, शायद 10 साल पहले चले जाए. But now it's so common. My son would proactively come and ask me questions about it without feeling that shame, because this is the environment we live in. You understand? Or we have to change as parents to do that. So fatantum, putting ourselves in the situation. So whatever reasons those are, हम लोग खुद यहाँ पे अपनी चॉइस के साथ आए, और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फतनतुम की डेफिनेशन डिफरेंट है। यहाँ पे ये है कि हम इस टेम्पटिंग एनवायरनमेंट में आ गए। यू आर गोइंग विद योर फैमिली ऑन अ ट्रिप, मे बी यू आर गोइंग फॉर योर तरावीज, or you're going to take Juma Salah. But it's summertime and you have so much scenery going on. You see people in immodest dressings. You will see advertisements. I don't know what not you see on the way going for the Juma. ऐसा ही है ना? So इस environment में जो आज हम सब बैठे हुए हैं, this environment is not created by anybody other than us. हम लोग ही आए ना इधर, कुछ डिसीजन लेके आए। जी फहद भाई, सॉरी, मैं आपकी एग्जाम्पलों से कोई ज्यादा एग्री नहीं कर रहा। जी जी देखें,
आप ये जो एग्जांपल दे रहे हैं ये जी जी मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सक रहा। अब जी जी हमें दुनिया में भेजा गया, ठीक है, हमने जी जी अल्लाह जी से कहा था कि हमें भेजो हम आए, ठीक है, तो इसका जी मतलब है जी कि पूरी दुनिया का एनवायरनमेंट ही वो है। जी जी आप एक स्पेसिफिक मुल्क की या उसकी बात कर रहे हैं या उस एग्जांपल की, जी जी तो वो मुझे एक्सेप्ट मुझे समझ नहीं मैं आ रही। स्पेसिफिक मैं मुल्क आपकी की बात नहीं एग्जांपल, कर रहा। वो जो एग्जांपल जी आपने दी बियर वाली, वो मैं एग्री करता हूँ कि जी जी इफ यू गो जी टू जी ऑफ्टन देयर इज अ टेम्पटेशन यू विल स्लिप। जी जी वो मैं एग्री करता हूँ उससे, पर जी बाकी जी आप जैसे वो आप उसकी बात कर रहे थे एलजीबीटी की, तो आई थिंक कि वो तो कौम लूत के ज़माने से चल रहा है, वो अभी का सब्जेक्ट नहीं था, उस पर हमेशा जी से बात होनी चाहिए। कुरान ने बड़ी क्लियरली बात की, जी वो जी तो हमने खुद उसको टैबू बना दिया कि हम इस जी बारे जी में बात नहीं करेंगे, वी हिड इट, जी दैट जी कॉज द प्रॉब्लम। अगर हम जी उसको जी क्लियरली और ओपनली डिस्कस करते, उसको हम कहते कि यार ये गलत है, बजाय इसके कि जी उसको जी हाइड करने के, तो वो प्रॉब्लम उस इतनी बड़ी ना बनती जितनी अब जी वो जी बन चुकी है। जी जी ये आपकी एग्जांपल मुझे कोई नहीं, मैं शायद मैं एक्सप्लेन नहीं आपको रिलेट कर नहीं कर पाया। सक रहा था। आप सही कह रहे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन, द पॉइंट आई एम मेकिंग इज नॉट कि हम लोग डिस्कस नहीं करते थे, डिस्कस तो करना चाहिए था। हम्म। ये तो हमारे अंदर गैप है कि जब कुरान बिल्कुल डिस्कस कर रहे हैं तो हमें अपने बच्चों से फ्रॉम वेरी ऑनसेट बिल्कुल डिस्कस करना चाहिए था। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन वो जो डिस्कशन करते हुए आज हमें अनकंफर्टेबलनेस फील होनी चाहिए ना बच्चों के साथ भी, कि दिस इज नॉट समथिंग विच इज राइट। वो वाली अनकंफर्टेबलनेस भी जो है ना, दैट इज मिसिंग, क्योंकि इट इज अ वेरी नॉर्मल टॉपिक नाउ इन दीज डेज। नहीं, पर सॉरी ठीक फादर, है पर जी अनकंफर्टेबलनेस क्यों होनी चाहिए? आपने क्लियरली जी कुरान में हमें ये बताया है कि यार ये चीज़ गलत है, ये सही है। तो हम जी अगर वो बात अपने बच्चों को बता रहे हैं तो उसमें अनकंफर्टेबलनेस तो होनी ही नहीं चाहिए। वो इसीलिए क्रिएट हुई ना। देखें हम लोग, मैं आपको मिसाल देता हूँ, स्कूल के अंदर ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं बच्चों के, जो एलजीबीटी क्लब्स बने हुए हैं। जी जी बिल्कुल। ठीक है, बने हुए हैं ना। तो अब आपका बच्चा जो है उसके साथ हम लोग डिस्कस नहीं करते, हमारी गैप है, ये हमारा हम्म। गैप है कि हम उसको खुल के डिस्कस नहीं करते रहे सारी उम्र। राइट। सो जब हम उससे डिस्कस करेंगे इस बात को तो फिर वो अवेयर भी होगा, राइट, ही विल बी इन्फॉर्म। अब बच्चे वापस आके क्वेश्चन करते हैं कि दैट फ्रेंड ऑफ माइन जॉइन दिस क्लब, राइट, जी। एंड ही टेल्स ही इज लाइक दिस। ठीक है ना, सो वो इसका सपोर्टर है, वो मुझसे पूछता है कि आई एम अ सपोर्टर और नॉट। ठीक है, हम्म। अब ये जो सारा एनवायरनमेंट है जो क्रिएट हुआ हुआ है, शायद ये एनवायरनमेंट उस वक्त क्रिएट नहीं होता अगर मैं किसी और जगह पे रहता होता। नहीं 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 नहीं, फादर, मेरी बात सुने, मेरी अभी मेरी आप बात सुने। इस्लामाबाद चले जाएं, दिस इज सो कॉमन, नहीं नहीं, आई लाइक अंडरस्टैंड दैट, मेरी इस्लामिक बात सुने ना। रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है वो, देखिए, जब यू कांट फितना से। फैलता है ना, जब फितना फैलता है तो पूरी दुनिया में ही फैलता है। राइट, हाँ, पूरी तो दुनिया उसको में फैलता है और पूरी हम दुनिया में है। लोकलाइज नहीं कर सकते ना। जो जो जी प्रॉब्लम ये है ना कि हम, मैं एग्री करता हूँ आपकी इस बात से, और 100% जी ये है कि अगर हम उसको, लेट से मैं जस्ट टू फिट इन में किसी क्लब में कर लेता हूँ कि यार मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, जी मैं जी नहीं जी करूँगा, ठीक है, बट मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, तो देयर इज चांस कि मैंने अपने आप को ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे मैं स्लिप होने जी का जी जी चांस है, तो जी मैंने जी जी अपने आप को प्लेस कर, तो ये फतन तुम जो है ना, ये आई एग्री इन दैट सेंस जी कि जी यार जी मैंने खुद ऐसी जगह पे लेके जा रहा हूँ जहाँ पे गलती की गुंजाइश है। लेट से जैसे कि मैं कहता हूँ कि जी मैं बीच पे चला जाता हूँ पीक समर में, और जी मैं कहूंगा कि नहीं जी मैं तो बड़ा, मैं किसी कुछ नहीं गलत काम देखूंगा, मैं अपने बड़े उस पे जाऊंगा। हाँ, एक दफा दो दफा तो हो सकता है, बट आई एम पुटिंग इन ए प्लेस कि जहाँ मुझे पता है कि आई कैन स्लिप, तो मैं कर सकता हूँ। तो वो फतन तुम जो है, मेरे ख्याल से वो एस्पेक्ट है जी जी कि आप ऐसी जगह पे अपने आप को लेके जा रहे हैं जहाँ पे गलती की चांस है, और यू कैन यू नो। आई जुनेद, हंड्रेड मेरा परसेंट एक एग्री विद यू। मैं एक्चुअली, मैं शायद आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा आई पॉइंट थिंक कहने का ये है कि ना, जब हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं ना जहाँ पे ये चीजें हो रही हो, हम्म। देयर इज ऑलवेज अ चांस कि somebody's son stands up, okay, everyone is joining, I want to join the same club। वो अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है उसके पास, राइट। और जब वो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करता है, वो बेशक उस क्लब में जाता है, ज्वाइन करता है, उसके साथ वक्त गुजारता है, सो ही इज ओपनिंग अप दैट सेम डोर जो कि हमने जाके ओपन किया डिनर में अपने कलीग्स के साथ, possibility of landing onto that sin, right? So that हम्म। possibility I'm trying to explain here. Maybe my example was not clear, लेकिन नहीं, जैसे वो फहद that can भाई, lead to जी। या मतलब जैसे फॉर जी एग्जांपल ऑन द अदर साइड, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं कतर में थी, वहां पे
रमज़ान जी के उसमें जल्दी टाइमिंग्स थे, तो जिसने जी नहीं या नमाज के लिए चीज़ें बंद होती जी थी, जी जी तो आई हैड द अपॉर्चुनिटी, या जिसके पास भी जो नहीं भी पढ़ रहा, उसके पास वो अपॉर्चुनिटी उस एनवायरनमेंट की वजह से आ जाती थी कि दे वुड गो एंड प्रे। जिसका नहीं भी इरादा होता था, अगर वो देख रहे कि माय कॉलीग इज गोइंग टू प्रे, तो आई विल गो। मतलब मैं जी अपने भाई की एग्जांपल देख सकती हूँ। वो दुबई मूव हुआ, तो देन ही वाज लाइक, ओ सब जा रहे थे तो आई हैड टू गो। मतलब वो नहीं पढ़ता था फिर। तो मतलब आई थिंक इट जस्ट उस सेंस में थी ये बात, आई जी थिंक। बिल्कुल। एक्चुअली आई थिंक हम लोग एक ही बात कर रहे हैं सब लोग, लेकिन शायद हम एक्सप्लेन नहीं मैं कर पाए। अगर किसी भी टेम्पटेशन के अंदर जो कि सही नहीं है, अगर पॉसिबिलिटी है कि हम उस टेम्पटेशन का पार्ट बन जाएंगे और उस टेम्पटेशन की वजह से विल लीड टू सम टू अ सिचुएशन which is not right, that is what fatantum is effectively saying. ठीक है? So एक intentional effort to put yourself in something that leads you to something else. जिस तरह कुरान में अल्लाह ताला कहता है कि a man and woman, a man and a woman should not be alone in one room because that leads to temptation, right? तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, राइट? सो आप उसको इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देख लें, जॉब पर्सपेक्टिव से देख लें, एकेडमिक्स पर्सपेक्टिव से देख लें, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं, आप देखते जाएं। बट हमारे सराउंडिंग में हमें वो इंटेलेक्चुअल कैपिटल बिल्ड करने की जरूरत है कि वी अंडरस्टैंड कि इफ आई टेक दिस एक्शन, इज इट गोइंग टू गिव मी an opportunity that leads to something much bigger which is wrong, right? So that's the whole point. So the first criteria, the first step Allah is saying that hypocrites take, they actually start to put themselves in environments that lead to temptation, and that temptation results in something that takes them out of the fold of believers. That's the whole point. So when the believers respond to them, they say, yes, of course you were with us, but you put yourself in temptation as step number one. Fatantum anfusakum. Anfusakum is a maf'ul. It's an idafa, right? It's number three. That's stage number one. Putting yourself intentionally in a situation that leads to temptation. अब इसकी ट्रांसलेशन आपको मिलेगी however you are led yourself led to temptation yourselves. For yourselves. एप्स में आपको ये ट्रांसलेशंस मिलेंगी, ठीक? सही है। वतरबस्तुम, नाउ आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी हैवी वर्ड, तरबस्तुम, और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल है। आपको ट्रांसलेशंस में मिलेगी यू वेटेड, यू अवेटेड, लेकिन द क्लोजेस्ट यू कैन ब्रिंग एन इंग्लिश वर्ड टू दिस इज प्रोक्रास्टिनेशन। Procrastination. Procrastination effectively means to to wait for something to happen so you can take that next action. ठीक है? So let's say अब मैं फिर से कोशिश करता हूँ मैं सही एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करूँ. It's a very complex, as I said in the beginning, to explain. So let's say you come in an environment, right? आपने एक एक्शन ले लिया किसी भी किस्म का, और फिर अब आप उस वो टेम्पटिंग एनवायरनमेंट है आपका, कोई भी हो सकता है, and you continue to stay in that environment intentionally, and you create a condition around it. Okay, when this will happen, I will leave this. Okay? मैं एक घर बना लूं तो मैं यहां से चला जाऊंगा, मैं ये डिग्री कर लूं तो मैं ये कर लूंगा, ये बंदा ये काम कर दे मेरे लिए तो मैं ये कर लूंगा, मेरे पास इतनी सेविंग जमा हो जाए तो फिर मैं ये कर लूंगा. You understand what I mean? So you, with instead of coming out of that temptation, you actually create a condition to come out of that temptation. Tarabbastu. You await, you procrastinate coming out of that temptation. You create reasons for yourself to come out of that temptation. That's what tarabbastum is referring to. Okay? This is ataf, this is a fail, and this is a past tense fail. Okay? Tarabbastum. Okay? And this
it's very difficult to translate. You can say कि and you awaited. Normally translation में आपको मिलेगी, और procrastinated. प्रोक्रास्टिनेटेड भी जी, waited और procrastinated दोनों लिख देता हूँ यहाँ पर. It's like, मैं आपको अपनी मिसाल दे देता हूँ, ठीक है. मैंने कहा जी मैं मास्टर्स करने पाकिस्तान से बाहर आऊंगा, सही है. मास्टर्स करूंगा, वापस चला जाऊंगा. मास्टर्स कर लिया. अच्छा, ऐसा करते हैं कि जॉब कर लेते हैं 5-6 साल. जॉब भी कर ली, ठीक है. ओ यार, डॉक्टरेट कर लेते हैं, और जरा बेहतर हो जाएगा मामला. डॉक्टरेट कर लेते हैं, ठीक है जी, वो भी कर लिया. ओ अच्छा, मैं भी थोड़ी सी सेविंग बनानी है, तो लेट्स स्टे हियर. शादी करके बेगम को भी ले आए, फैमिली को भी सेटल कर लिया, राइट. जाते हैं 25 साल गुजर गए, राइट. और उस पॉइंट के बाद से, हालांकि अपने आप से कमिटमेंट ये करके आए थे कि वापस जाना है. पेरेंट्स भी पाकिस्तान में, सब, ये हर किसी, ये बहुत सारे लोगों की ये स्टोरी है, ठीक. तो उसके बाद से अब सिचुएशन ऐसी है कि अब इतना टाइटली फिट इन हो चुके हैं यहाँ पे कि यहाँ से रिलीज होना बड़ा मुश्किल हो गया, राइट. सो बेसिकली that could have been an example of tarabbaston. You made an intention, but you kept on prolonging that intention, and you created conditions around it not to do it. Procrastinate. सॉरी Different. ये जी काम तो सारे अच्छे किए आपने. जी, काम तो सारे आपने अच्छे किए, पढ़ा, फैमिली को सेट किया, उनके लिए वसीला रिस्क बने, तो इसमें गलत क्या था? नहीं, मैं आपको अपनी मिसाल इसलिए बताने के लिए दे रहा हूँ कि फिर कोई, यानी आई थिंक if I put it on myself, then I think we can explain it better, because it's नहीं, more पर ये तो realistic. सारी अच्छी बातें मैं ये नहीं थी, कह रहा हमें तो कि सही मैंने कुछ लगा. गलत किया या सही किया. अल्लाह जानता है क्या गलत है क्या सही है, आई डोंट नो, ठीक है. लेकिन बात है, यहाँ से जाना क्यों, मुझे क्यों हाँ, जाना ये है यहाँ क्यों से? फात भाई, यहाँ से क्यों जाना? लाइक मुझे समझ नहीं आ रही, हम इस बात पे एम्फेसिस क्यों है कि हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए. इंसान, अगर अल्लाह ने हमारा रिस्क नहीं, यहाँ मैं ये लिखा नहीं है कह रहा हूँ तो आपसे. मैंने देयर कब कहा इज, कि आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए. मैं तो एक एग्जाम्पल आपको दी है ना यहाँ पे, कि हमें दिस वन समझ गया. पर्टिकुलर एग्जाम्पल, राइट. यू कुड क्रिएट अनदर एग्जाम्पल, राइट. सो नहीं है ना, देखिए, हम ना अपने आप इस वालिदैन फैक्ट को को, तो छोड़ के आए हैं ना, तो वो एक रीजन इट्स अ बिग रीजन. ओल्ड एज छोड़ में के नहीं आए, हम छोड़ के नहीं आए उन्हें. जा नहीं अल्लाह सक ने रहे हमारा वापस. रिस्क अगर जहाँ लिखा है तो हमें वहीं होना है. नहीं, देखिए, नहीं, लेट्स वो ठीक. लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन फ्यू थिंग्स. देखिए, रिस्क वालिदैन जो हमारे दीन में ना हमारी जिम्मेदारी है, हाँ सही है. जी, We बिग can tell जिम्मेदारी. ourselves anything. We can tell ourselves Yeah. career, investment, better life. Yeah. We can keep on telling this to ourselves. This is tarabbastum, clearly creating conditions instead of accepting what is our जिम्मेदारी. ठीक है, हमारे दीन में है, like it or not. ठीक है, this is the fact. And wallahi, अगर मेरे पेरेंट्स यहाँ सेटल नहीं होते ना, मैं चला गया होता यहाँ से. ठीक है, मेरे पेरेंट्स यहाँ पे हैं और मेरी वालदा का इलाज है, इस वजह से मैं नहीं जाता यहाँ से. दैट्स द प्राइम रीजन बेसिकली. और ये, इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते, चाहे जितना भी कहें. यहाँ पे हमें अपनी दीन को अमल करने की फ्रीडम है. हम नमाज पढ़ सकते हैं, ईद मना सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं, दैट्स फाइन. लेकिन द फैक्ट इज कि जो आपको एनवायरनमेंट मिसाल के तौर पे मदीना में मिलेगा ना, आपकी फैमिली को, वो यहाँ नहीं मिल सकता. नहीं फात नहीं भाई, मिल सॉरी, सकता. इंडिविजुअल है फात नहीं भाई, मेरे ख्याल ये ऐसा भी. नहीं नहीं है. मिल सकता. उसकी अब ऐसा रीजन, नहीं है फात भाई. फात भाई, आप मुझे लगता है, जो पर्सनली मुझे लग रहा है कि आप जो है ना, बहुत अरसे से शायद पाकिस्तान वगैरह का चक्कर नहीं लगा आपका. यार आपको थोड़ा लगा है मेरी जाके बात कि सुने पिछले यार. देखिए, गए वहां मुझे पे सब थोड़ा पता है पे पाकिस्तान जो में क्या हो हो रहा रहा है. है, यू विल बी हैप्पी मुझे सब हियर. पता है. मैं पाकिस्तान की तो मैंने पाकिस्तान को तो बोला ही नहीं. पाकिस्तान प्रॉब्ली इज द लास्ट प्लेस यू शुड गो. तो फिर आप ठीक कहाँ है, जानना चाहते हैं? लाइक मैंने क्या, किस सिटी का नाम लिया? तो फिर मदीना. लाइक मदीना बोला ना लेकिन मैंने. यू अब यू नीड मदीना टू के गिव अंदर अस भी ये, सॉल्यूशन अलोंग विद देखिए, क्वेश्चन. अल्लाह ताला ने इस दुनिया को ना इनपरफेक्ट बनाया है. कोई भी परफेक्ट दिस इज नॉट परफेक्ट प्लेस. नो मैटर वेयर यू गो. आप हरम में बैठते हैं, वहां फ्रॉड होता है. बिल्कुल. लोग आपसे पैसे लेके चले जाते हैं. सो एक्सपेक्टिंग कि एवरीथिंग विल बी प्योर एंड क्लीन इज वेरी नाइव. नहीं, लेकिन फात भाई, उसी बेसिस पे फिर हमें
भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ना कि इम्परफेक्ट है दुनिया, तो फिर हम यहाँ पे तो हैं तो सही है, अच्छा, मैं यहाँ पे इस फिर क्वेश्चन को ना काउंटर करता हूँ। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड और शुड नॉट लीव, हर किसी का अपना पर्सनल ये डिसीजन है। मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाई शुड यू नॉट लिव इन मदीना? मुझे बताएं, व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग दैट? व्हाट इज स्टॉपिंग? मदीना लाइक मतलब वहाँ मिसाल दे मैं रहा हूँ तो मैं आपको, एक नहीं, चूज ठीक किया है, मैंने सिटी ऐसी हाँ। रैंडमली। What do you think stops you from taking an action in giving a better environment closer to the mosque of Prophet ﷺ to your kids? Better lifestyle there, क्योंकि आप बेड्स रख सकते हैं, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग डाउन है, बहुत नहीं सारी नहीं, चीजें बात हैं। भाई, कैसे आप देखें, कैसे वहां आप जी पे आप 4 दिन रहें, जिस तरह का सलूक आपके साथ किया जाता है, जी जी आप उसके बाद लाइक आपसे वो 4 दिन बाद आप आके कह रहे थे या अल्लाह आप इनको हिदायत दे कि ये इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट करें, उसके जी बाद जी आप वहां रहने का कह रहे हैं। जी नहीं, जी आपने जाके अगर कहीं पर जी रहना है जी तो आपको पूरा वहां पे सिस्टम चाहिए ना। हाँ आपको पैसे अर्न करने हैं, आपने कुछ करने के लिए कुछ करना है, जी 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 आपने आप रहना है एफर्ट कर कहीं रहे पे। हैं वो क्रिएट आप करने के लिए। नहीं, मेरे पास कोई ऐसा स्किल नहीं है जो कि मैं मदीना में जाके वहां पे रह सकूं, ठीक है। मेरे आई पास कोई ऐसा डिसएग्री स्किल विद नहीं। दैट पॉइंट टोटली। अब ठीक है, मतलब आप ठीक है, डिसएग्री कर सकते हैं, हम मुस्तखलफीन डिसाइड आएगा। फीही, हमने पढ़ के आए हैं ऊपर। नहीं नहीं ठीक नहीं है, नहीं, ये जो है ना, ये दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो हम देखिए, मुसलमानों की है, कि हम सब कुछ अल्लाह पे छोड़ देते हैं। अल्लाह ने किया नहीं, अल्लाह ने आपको अकल दी है। अल्लाह पे कोई अगर नहीं ऐसा छोड़ा होता, देखिए जुनेद, फातिमा, देखें आप एक पॉइंट नहीं सेकंड, समझ रहे हैं। एक सेकंड, अगर ऐसा होता तो रसूलुल्लाह के ज़माने में हर बंदा मदीना में आके रहता। वो दुनिया के किसी जो मुसलमान था वो कहीं पे भी और ना रहता, जी ठीक है। वो कहीं पे भी ना रहता, वो जी जी सिर्फ आके मक्का और मदीना में रहना रहना शुरू हो जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। हम्म। ना ही प्रॉफिट ने किसी को तो कहा कि तुम दूर ऐसा करके इथोपिया करो, में जाके उनको कहा हिजरत करो, सही है। जाओ, ना ही गो प्रॉफिट ने फॉर उनको कहा किसी को। गो फॉर इट। तो अब ये देखें, बात तो सिर्फ कर देना कि जी अल्लाह के पर छोड़ तो अल्लाह करेगा, नहीं, अल्लाह ने आपको अकल दी है, ये अल्लाह ने किसने कहा है कि कहा? भाई ये तो कोई यू भी नहीं हैव कह टू रहा डू जुनेद। इट। नहीं ये फादे, हमने हम ना पूरी कतर सूरत में पढ़ ली, हम हमने कतर में सारी। रहे हैं, दो साल ना सबीन वहाँ जॉब कर रही थी। जी तो जी सबीन ने बड़ी अच्छी एग्जांपल्स दी हैं कि जी मुझे मौका मिला, मैंने स्कार्फ लिया, बच्चियों ने स्कार्फ लिया, लेकिन उसके जी साथ जी साथ जी आपको ऐसी बातें भी हैं जो सही नहीं है। जी मतलब ना वो एब्सोल्युटली, इस्लामिक हैं, बिल्कुल ना वो इस्लामिक हैं, बिल्कुल ना बच्चे को आपके आपके बच्चे को एक ऐसी इन्वायरमेंट मिलेगी जो कि स्ट्रेट अवे इस्लाम की टीचिंग्स के खिलाफ जा रही है। मतलब वहां पे जी आपको जी साफ नजर आएगा, यू आर नॉट इक्वल, यू आर नॉट, दे आर 1 2 3 जी स्टेप्स जी जी अबव जी यू। जी यानी इस्लाम की जो बेसिक टीचिंग्स हैं वो जी 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 उसको फॉलो नहीं कर रहे। मैं जी सिर्फ जी ये कह और रहा हूँ कि हम मतलब नथिंग इज नोवेयर इज परफेक्ट। हमें लगता है कि हम मुझे नहीं लगता है कि ये एक गलत जगह या बुरी जगह है रहने के लिए। यहाँ पे हमें बहुत सी अच्छी चीज़ें मिली हुई हैं। हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है, हम अपने दीन को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जी हम जी जी ठीक है कि कुछ कुछ चीज़ें गलत भी हैं कि जी मुझे लगता है कि वो अच्छा है कि आपको नज़र आता है कि डिफरेंस नज़र आता है, वहाँ सारा कुछ छुपा हुआ है। मतलब हमारी जो जी जी मदीना में या कतर में ये नहीं कि कुछ गलत हो नहीं रहा, वो जी जी सारा जी कुछ वहाँ बहुत छुपा हुआ है। तो जी मुझे लगता है कि आपको नज़र आए, आप बताएं बच्चे को, आपकी बच्चे की ऐसी तरबियत हो या वो देखे कि यार जी ये जी गलत काम है, ये सही काम है, और फिर वो चूज करे। मुझे जी तो जी लगता है जी कि ये ज़्यादा बेहतर एक एक जगह है। स्पेशली मुझे सिर्फ एक पेरेंट्स वाला लगता है, अगर आपके माशाल्लाह पेरेंट्स भी आपके साथ हैं और आप उनका ख्याल भी रख रहे हैं, तो देन दिस इज द परफेक्ट प्लेस फॉर यू टू लिव। जी जी मेरा ये है। बिलाल देखिए भाई, वो भी जी शायद अभी हम एक रीजन ही दे रहे हो, लेकिन हम चाहते हैं पेरेंट्स आए, हमारे पेरेंट्स आना नहीं चाहते। बिल्कुल। वो भी तो जी हम जी बिल्कुल, चाहते आई हैं थिंक ना। हर किसी की नीयत तो क्लीन होती है, हर कोई अपनी प्योर इंटेंशन से काम करता है। और कोई भी प्लेस, जैसे आपने बिलाल भाई कहा, इट्स नॉट परफेक्ट, इट इज नॉट हम्म। सपोज टू बी परफेक्ट एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल। दिस वर्ल्ड इज नॉट सपोज दिस टू बी वर्ल्ड इज परफेक्ट। नॉट परफेक्ट, ठीक है, बिल्कुल आप कहीं सही पे है। भी जाएंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। द पॉइंट आई थिंक वी वर ऑल ट्राइंग टू मेक इज कि जो एनवायरनमेंट होता है ना हमारे अराउंड, चाहे आप कहीं पे भी रह रहे हो, that creates that temptation, and then it's our job to get out of that temptation without हम्म procrastinating. That's the message हम्म basically, बिल्कुल, दैट्स, हाँ, सही। ये right? 100% ये सही That's सही। बात what we all are trying to है। say, and we're just constructing different examples that can go and relate with each other or not. ठीक है, that, but that's the pure message. सही है, गुड 100%। डिस्कशन। इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी तो आगे दो इंशाल्लाह और वर्ब्स इंशाल्लाह। आने हैं,
ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, सही है, इंशाल्लाह जी, थैंक यू चले, भाई। ओके जी, बहुत जज़ाकल्लाह शुक्रिया, जज़ाकल्लाह अस्सलाम खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।